درائے 15 منٹ کر محنت کرا جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس آگے بڑھو. نیشنل کانفرنس حقیقت کہ 1 اکتوبر نیرو تُہۍ ترٛٲیِو ووٹ فاروق احمد شاہ صٲبس اور باقی تُہُنٛد یہِ مُدعا تہٕ مقصد چھِ تِم کرو أکسٕے جمع رحمان حل. آج وٕچھ مےٚ واریاہ کٲلۍ پٔنڈِت پوٗر چال آج چھِ یہِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز عکٲسی کہ پنڈت بٲیِو ماجو بیلیو کوریو عزیزو بزرگو چھُ فٲصلہٕ کوٚرمُت کہ 1 اکتوبر ترٛاوُن تِم علم نقشہ انشاءاللہ یہِ کانسٹیچوٗنسی دِنس بہٕ چھُس یژھان سُہ اِمپلمنٹ کرُن یہِ کانسٹیچوٗنسی بناوٕنۍ. اللہ تعالیٰ کُن کٔرِو شُکُر اَسہِ سوٗز خۄدایَن کیٛاہ نظار کینڈِڈیٹ 3 ؤری وٕچھو وٕنکٮ۪س ترٛاوو ووٹ یِم تہِ ترٛاوو یِم تہِ چھِ 5 ؤرین ہٕنٛدۍ خٲطرٕ 5 ؤری بعد تہِ وٕچھو أسۍ. دیکھیے اس بار میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں اپنے ووٹر سے کہ اس بار ایک بار مجھے وہ موقع دیں. سیاستدان سے پتہ فاروق احمد شاہی بنی تہِ کَرِ انشاءاللہ. ہم پہنچے ہیں ضلع بارہمولہ کے گلمرگ کانسٹیچوئنسی میں. اس کانسٹیچوئنسی کی اگر بات کریں تو لوگ یہاں پر ٹوریزم سے وابستہ ہے. اس کانسٹیچوئنسی کی اگر بات کریں تو یہاں پر 3 بار غلام حسن میر MLA رہ چکے ہیں. نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ فاروق احمد شاہ کو اس بار جو ہے مینڈیٹ ملا ہے گلمرگ کانسٹیچوئنسی کے لیے. فاروق احمد شاہ کی اگر بات کریں تو وہ ایک ریٹائرڈ IAS آفیسر 2004 کے رہ چکے ہیں. ساتھ میں ڈائریکٹریٹ آف ٹوریزم ایجوکیشن PHE فلڈ کنٹرول کے بھی رہ چکے ہیں. خاص طور پر انہوں نے یہاں پر سکی ریزارٹ اور کیبل کارپوریشن کے بھی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. چلیے آج کی اس نئے سفر میں ان سے ملاقات کریں گے, دیکھیں گے گھر سے لے کر عام تک کا سفر کیسا. ہاتھ میں ہاتھ چلے تو چلیں ناظرین ہم پہنچے ہیں ٹنگمرگ کے ہاری پورہ علاقے میں جہاں پر فاروق احمد شاہ لوگوں سے خطاب کریں گے. ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ لوگوں سے کیا بات چیت کریں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. کہ روڈ چھو تۄہہِ مےٚ چھُ اَمہِ کتھِ ہُنٛد احساس کہ تُہۍ چھُو ٹنگمرگہِ نِش 2 کِلومیٖٹر دوٗر سُہ کدل تہِ سُہ روڈ تہِ بہٕ دِمو تۄہہِ ہٲیِتھ کِتھ کٔنۍ چھِ بناوان روڈ. لوگ گورمنٹ چھِ آسان لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. گورمنٹ چھِنہ یہِ نہ حظ یہِ خۄش گژھِ تہِ کَرِ. اگر یہِ فارسٹ لینڈ چھُ یہِ کرناوو أسۍ دِمو ایکویشن أسۍ دِمو کمپنسیشن فرام دِ گورمنٹ تۄہہِ دِمو بہٕ یہِ روڈ بنٲیِتھ انشاءاللہ. عمر صٲبنہِ بٔنتھٕے انشاءاللہ بناوون یہِ روڈ أسۍ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آل جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس آل جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس. جیت ہماری انشاءاللہ, جیت ہماری انشاءاللہ, جیت ہماری انشاءاللہ, جیت ہماری انشاءاللہ. سر ابھی
अभी जो है कैंपेनिंग का आगाज़ हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो रहा है, तो आप भी सुबह घर से शुरुआत करते हैं, तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है, किस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं खदमत खलकुल्ला के लिए आया था इस फील्ड में। अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट फील्ड, इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। As you can see the sanitation problems, you can see the indiscipline. तो मेरा इंशाल्लाह ऊपर वाला कामयाबी देगा। My first and foremost thing will be to restore Gulmarg to its pristine glory. गुलमर्ग जो ग्लोरी है उसको वापस लाएंगे। गुलमर्ग में जो हमारी ट्रेड को मुश्किलात हैं, चाहे वो पोनी वाला है, चाहे वो गाइड है, चाहे वो हेल्पर है, उसको हम दूर करें। उन मुश्किलात को वो एक इज्जत की रोज़ी कमानी चाहें। गुलमर्ग अगर टूरिज़्म है तो हम अगर हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं है तो उस मतलब क्या है उस टूरिज़्म का? लिहाजा मेरी फर्स्ट वो प्रायोरिटी एंड देन ग्रेटर गुलमर्ग। इसमें मेरा ये है कि जहाँ भी टूरिज़्म पोटेंशियल है, जिन गाँवों में भी इस इलाके में टूरिज़्म पोटेंशियल है, टूरिज़्म वहाँ तक हम ले जाए। और इसी तरह से आई विल इंट्रोड्यूस फार्म टूरिज़्म, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि हॉर्टिकल्चर भी हम पूरी तरह से डेवलप करें। और उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ गाहक आते हैं, हमारे टूरिस्ट आते हैं, दे कैन बी द बेस्ट कस्टमर्स, लेकिन इन चीज़ों को जो है करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जब पावर आएगा तो हम ज़रूर शुक्रिया। जिससे अभी लोगों का प्यार देख के आप पर मिठाइयाँ बरसा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको अभी? मैं इसी को देख के बहुत घबरा रहा हूँ कि ऊपर वाला मुझे हिम्मत दे दे, लोगों की उम्मीदें, लोगों को बहुत हमसे ये है कि ये आदमी काम करेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे सिरात मुस्तकीम पर रखे। इन लोगों के कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए। दैट विल बी माय जो है मैं वही मेरा मिशन होगा कि मेरा कोई जो मेरा वोटर है वो परेशान नहीं होना चाहिए। इसी दौरान इंशाल्लाह वादे जवान मुझे मोटे 5 नंबर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी मगर एतमाद सोरी पुरुष तो वनियो आज फारूक साहब बनान वोट मोजो बाकी सो दिल से बेशक नक्शा इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ जैसा से इंप्लीमेंट करो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनावे 5 वर्ष बाद मर्जी अगर कोई बाशे बेकर काम तेल चीजों में वो नती मन वो वोट आप देख रहे हैं खुद ही लोगों में क्या जज्बा है। और ये जो है यहाँ के लोग बड़े उनको है वलवला है, उनको ये चाहते है कि इस इलाके की भलाई हो, इस इलाके की डेवलपमेंट हो, नौजवानों को इज्जत का रोज़गार मिले। हमारी बड़ी यहाँ नौजवानों में परेशानियाँ हैं, लिहाजा ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत बने। दे वांट पॉलिटिकल सिस्टम, दे वांट पॉलिटिकल गवर्नमेंट, खदमत खलकुल्ला की, नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी, नथिंग एल्स। सिर्फ ये जज्बा है कि अपने इलाके के लोगों की खदमत करें, अपने इलाके की डेवलपमेंट करें, अपने लोगों को खासकर नौजवानों को जो मुश्किलात से
वो मुश्किलात दूर करें, परेशानी से निकालना, ये मेरी अवली कोशिश है। तो यहाँ से इन्होंने खिताब करते हुए अब दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहे आप तक, पूरा घर से लेकर आवाम तक के सफर में हमारे साथ बने रहे। सो इंसान यमिस मज कंस्ट्रक्टिव माइंड छु, यमिस तमीरी दिमाग छु, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के निशुब से हराज सुगंध साया से अल्लाह ताला थे सुरतुल मुस्तकीम तेल पर गोना को मुश्किल अल्लाह ताला ऐसा बीरू की सुनावाई पटन की खुदा ताज गुलमर्ग बे हजरत बाबा पयामदीन रिश हको तम सलाक सुन बन तोर सारी मिनिस्टर सेंटर सारी VIP तमन हको ना इस चीज तमन हको ना इस पे अलाक इंजीनियरिंग कॉलेज तमन हको ना इस पे अलाक बे एडिशनल ज़ात आंगनवाड़ी सेंटर तमन हको ना इस स्कूल मगर तमिस नफ्स शख्स न दिलस मन सू दर्द डेडिकेशन कमिटमेंट नियत साफ की कुछ तवे नमन माहिर बेजन वनान इंसान वनान वजीर आला बन ना वजीर आला अल्लाह ताला ठीक खुदा सोरे वत इज़ मन तशा वत ज़िल मन तशा मगर सोन लीडर जो उमर उब्दा सर सुबह इंशाल्लाह वजीर आला नहीं में आपको। इस नई शुरुआत के साथ हम पहुंचे हैं मावला चंगमरग का एक एरिया है, एक दूर दराज इलाका है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं 10 साल के बाद यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं तो लोग क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। गुलाम अहमद। सर हमें बताइए इस गांव के बारे में, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप देखना चाहते हैं कि इस असेंबली इंतखाबात के बाद हल होने चाहिए? अगर हम कहेंगे कि ये मसाइलिस्तान है, मसाइलों से भरा हुआ गाँव है, ये एक बैकवर्ड एरिया है, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना राशन गार्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यानी कि जो भी फैसिलिटी आदमी को होना चाहिए वो नहीं है यहाँ। तो 10 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, आपकी जो उम्मीद है वो पूरी होगा? इंशाल्लाह फारूक अहमद शाह साहब इस साल बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं बहुत भारी बहुमत के साथ। ये जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, दे वांट चेंज in Gulmarg constituency, they want to see new face in constituency। चलिए अबूरा से हमारे साथ साकिब मीर जुड़ चुके हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। पहले आप बताइए कि इन 10 सालों में आपको क्या चेंजेस देखने को मिली? जैसे पहले नुमाइंदे इन 10 सालों से पहले आए, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया यहाँ पे। तो जब आपको मैं बताता चलूँ, जब फारूक अहमद शाह साहब सेक्रेटरी एजुकेशन थे तो एक लिंक हमारी बंद हो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो हम इनके रेजिडेंस पे गए, इनसे मुतालबा किया फारूक साहब जो वहाँ पे लिंक है वो अब उनने बंद की है तो वो अब ओपन करवा दीजिए। तो फारूक शाह साहब ने वहाँ पे IT सेक्शन में कॉल किया तो उनने वो ओपन करवाया। तो इससे हमें लगता है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनने कैसे हाथ बटाया स्टूडेंट्स का, अब आज ये नुमाइंदे हैं तो आज ये उससे भी ज़्यादा काम करेंगे। तो आपके इलाके की अगर बात करें, वहाँ पे ऐसे कौन से मसाले हैं जो आप चाहते हैं कि इस असेंबली इंतखाबात के बाद अगर फारूक अहमद शाह जीतेंगे तो क्या कुछ बदलाव आएगा? हमारे इलाके का जो PSC है, पिछले 10 सालों से वहाँ पे कोई मशीन ही नहीं है, उस टेक्निकल जो उसको चला सके वो बंदे भी वहाँ हाजिर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करेंगे कि जब फारूक अहमद शाह साहब बतौर MLA गुलमर्ग 11 बन के आएंगे तो एक तो वो सारे मुश्किलातों का अजाला करेंगे और ज़्यादातर इस इलाके में पानी और बिजली की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार भी आएगी इंशाल्लाह, हम उसी पे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार आएगी हमारी मुश्किलातों का अजाला होगा। हैरान तनख्वाह में आज मैं एक पैसा भी नहीं आई एम फ्रॉम द परे मोहल्ला। हमें यहाँ पे
10 मिनट 2 दिनों के बाद, 1 दिन के बाद 10 मिनट हमारा पानी, हमें आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन पानी पे हमारी लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पे देयर इज हेल स्कैरसिटी ऑफ वाटर। इवन यहाँ पे सारे लोग जमा हैं, आप इनसे पूछे कि पानी की अवेलेबिलिटी है इधर? नहीं, यहाँ पे पानी को 10 मिनट 2 दिनों के बाद आपको मिलते हैं टर्न। उसके बाद हर किसी चीज की देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ एवरी ईच एंड एवरी। किस कौम से शाल खास चलान की याद बड़ बार सन गई याद वनस बे अत बड़ बड़ ड्राल तकरीबन अरब कंट्री गई माफ कोई याद ग अमान कोवत गसान तो अस वातान कहें दोस पे हाथ जहत तो भरपूर फारूक अहमद शाही योर यह कर अत कारस बदलाव। उम्मीद यह कर जवान फारूक अहमद शाह साहब यह कर अत हिदायत बदलाव। बेरोजगारी ना तकरीबन आज फारूक शाह आमद क्या उम्मीद इंशाल्लाह इत पे वन अगर यमन हकूकतन पे तैयार रोज यह कर वनकस वन हेको लोगों का यही कहना है कि पिछले 10 सालों से हमें नज़रअंदाज किया गया है जो पिछले वाले MLA से, तो क्या कुछ तवक्का है, आप उनके लिए क्या करनी चाहते हैं? 10 साल से नहीं, ये बेचारे 20 साल से पिस रहे हैं, इनको कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ आए एक MLA होता है प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये बेचारे उसे मारूम है। मैंने इनको वादा दिया है इंशाल्लाह ये मुझे एतमाद देंगे, कामयाब कराएंगे। मैं इनको इंशाल्लाह तरक्की और तामीर का नया इंशाल्लाह बाब शुरू होगा यहाँ। इंशाल्लाह 9 अक्टूबर से ही यहाँ डेवलपमेंट की शुरुआत होगी इंशाल्लाह। और यहाँ के जो मसाइल हैं, खासकर मेरे नौजवानों के, इनके रोज़गार का मसाइल हैं, और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इनको मैं इज्जत का रोज़गार दूंगा और जो भी इलाके में मुश्किलात हैं उनको इंशाल्लाह दूर करूँगा। स्कूलिंग मैंने मैट्रिक जो किया अपने गाँव के हाई स्कूल से किया, फिर जो 10+2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से किया, देन मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर से की। मेरे वक्त जो है सिर्फ 2 जो है नौजवान तालीम याफ्ता चाहते थे, एक तो डॉक्टर एंड इंजीनियर, टू बी एन इंजीनियर आइदर, उनका एम होता था आइदर टू बी ए डॉक्टर आइदर इंजीनियर। तो बहुत ही उस वक्त इज्जत होती थी अगर इंजीनियरिंग के लिए कोई सेलेक्ट होता था। तो 82 में मैंने दाखिला लिया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में एंड 86 पास आउट हूँ मैं, 4 इयर्स कोर्स था उस वक्त। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आया इन 1987। उसके बाद आई वॉज इंडक्टेड बाय ए प्रॉपर प्रोसीजर इनटू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये चीज़ें आम नहीं होती हैं, ये गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन आई वॉज इंडक्टेड इनटू IAS फ्रॉम 2004। तो पहली जो है मेरी पोस्टिंग रही बहुत सी डिपार्टमेंट्स में। फर्स्ट आई वॉज हैंडलूम्स, देन स्टेट्स डिपार्टमेंट, देन एज DC Excise Kashmir, then Secretary Service Selection Board. Then I was appointed as Managing Director Cable Car Corporation for the completion of the Section 2 of the Gulmarg Gandora project. खदमत खलक कर लूँ, खदमत खलक का जज्बा पैदा हो गया दिल में, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर नौजवानों की बहुत प्रॉब्लम्स, नौजवान के रोज़गार, नौजवान परेशान हैं। इस इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। जो हमारे आए वक्तन फवक्तन, खासकर एक साहब ने 3 बार यहाँ लोगों से मैंडेट लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। तो लोग परेशान मैंने देखे, तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि आई शुड जस्ट लीव माई सर्विसेज एंड इस फील्ड में घुस जाऊँ, बिकॉज आपको रियली अगर खदमत खलक का जज्बा है तो पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट फील्ड, जिसको हमारे यूथ जो है पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ मई पॉलिटिशियंस। उन पॉलिटिशियंस ने यूथ के साथ धोखा किया है। तो मैंने यही समझा कि अगर खुदा को मंजूर होगा मैं सियासत में आऊँ ताकि अपने लोगों के मसाइल को दूर करूँ।
की तरफ रवाना हो रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अभी घर की तरफ रवाना नहीं हो रहा हूँ, रात के 12 बजे तक बज रही, घर कहाँ, पॉलिटिक्स ये इलेक्शन में घर वर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का रेस्पॉन्स है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कामयाबी देगा, तो मैं अल्लाह ताला करे कि हम लोगों की उम्मीदें जो हैं उस पर पूरा होते हैं, मेरे लोग नाराज़ नहीं हों मुझसे। मैं वही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, मैं लोगों के काम करूँ, जो उनको उम्मीदें हैं इस इलाके में, जो मामले और मुश्किलात हैं वो उनको दूर करूँ। अपने नौजवानों को, जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं, उसमें तालीम याफ्ता बच्चियाँ हैं, उनको मैं इज्जत का रोज़गार दूँ, वही वो मेरा मिशन है। आखिर पर घर से लेकर आवाम तक इस सफर में लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी लास्ट पर? देखिए, इस बार मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ अपने वोटर्स से कि इस बार एक बार मुझे वो मौका दें अपनी खिदमत का, इस इलाके की खिदमत करने का। मैं उनको वादा देता हूँ कि एक चांस मैं उनको पिछले 30 साल से ज़्यादा काम करके दूंगा। मैं इंशाल्लाह इस इलाके को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया भैया। Shah